Hello students and welcome to the channel SNW Physics classes. If you really understand the concepts taught here, please turn the black thumb blue. That means like the video, share with your friends and subscribe to the channel SNW Physics classes. Do not forget to hit the bell icon for the latest update. Today we are going to deal the second part of chapter gravitation. In this video, we are going to deal the topics equation of motion for a freely falling body. We will differentiate between mass and weight of the body on the moon, pressure and thrust, buoyancy and buoyant force, Archimedes principle, density and relative density of the bodies. Very first topic to be discussed in this video is equation of motion for freely falling bodies. For a freely falling body, acceleration is replaced by acceleration due to gravity means g, and displacement is replaced by height. We have already known about the equations of motion, that is v is equal to u plus at. It was the first equation of motion we have already discussed in chapter 1. If you have not seen the video, you can go through the link given in the description box. Second equation was s is equal to ut plus half at square, and third equation was v square is equal to u square plus 2as. So यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, we have just replaced a with g and s means displacement with height, that is h. ठीक है, equations वही है जो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, बट यहाँ पे हम लोग in the case of freely falling body, acceleration is replaced by acceleration due to gravity and displacement is replaced by height of the object. As it is free falling body, so it will fall from some height, कुछ height होगा जिससे वो fall करेगा. That's it. This is the only equation of motion for freely falling body. It means a is replaced by g and s is replaced by h. So the equation, first equation becomes v is equal to u plus gt. Second equation is h is equal to ut plus half gt square, and third will be v square is equal to u square plus 2gh. ठीक है. When we consider the motion of a freely falling body, we have to keep in mind these all points. The very first point is when the body is falling freely vertically downward. Okay, when the body is falling freely vertically downward, its velocity is increasing. So the acceleration due to gravity will be positive. ठीक है, जब बॉडी जो है हम लोग किसी पर्टिकुलर हाइट से उसको ड्रॉप कर रहे हैं या वो फ्री फॉल हो रही है, उस बॉडी की नीचे आ रही है, उस केस में वेलोसिटी विल इंक्रीज. In that case, acceleration due to gravity will be positive. In that case, g will be positive. We can write g is equal to plus 9.8 meter per second square. Second point is when a body is thrown vertically upward. If we throw a body vertically upward, then its velocity will decrease. Its velocity will decrease. So the acceleration due to gravity is taken as negative. वहां पे velocity जो है वो decrease करेगी when we throw a body vertically upward. ठीक है, जब ऊपर की तरफ किसी बॉडी को हम लोग फेंकेंगे तो उस केस में क्या होगा कि बॉडी की जो वेलोसिटी होगी दैट विल डिक्रीज. इन दैट केस g will be equal to minus 9.8 meter per second square. ये जो सारी पॉइंट्स है ये हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ये सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत काम आने वाले हैं. दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग दीज ऑल पॉइंट्स हियर. Third point is when a body is dropped freely from a height, its initial velocity will be zero. Okay, when we drop, यहाँ पे हम लोगों ने किसी हाइट पे किसी ऑब्जेक्ट को रखा, किसी बॉडी को रखा और उसे ड्रॉप कर दिया. Okay, then its initial velocity means u will be equal to
0. Its initial velocity will be 0. Fourth point is, when the body is thrown vertically upward, its final velocity becomes 0. किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग ने अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ फेंका, then final velocity v will be equal to 0. Fifth point is, the time taken by a body to rise to a highest point is equal to the time taken to fall from the same height. मीन्स अगर हम लोगों ने किसी ऑब्जेक्ट को h हाइट पे थ्रो किया तो जो टाइम उसे इस हाइट को पहुंचने में लगेगा उतना ही टाइम जो है वो वापस अर्थ के सरफेस में आने में लगेगा. द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू राइज टू अ हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू द टाइम इट टेक्स टू फॉल फ्रॉम द सेम हाइट. ठीक है, अगर t टाइम में ये ऊपर गई ये ऑब्जेक्ट ये बॉडी तो t टाइम में ये वापस आ जाएगी तो टोटल टाइम जो हो जाएगा उसका 2t हो जाएगा. 2t. Here is one question based on equations of motion of a freely falling body. So the question says that a ball is dropped from a height of 20 meter. Let us consider a ball A which is dropped from the height 20 meter. 20 meter के height से ये नीचे गया. Okay. At the same time, another ball is thrown up from the ground at the same instant of time. एक और बॉल हम लोगों ने लिया, ठीक है, जो ऊपर की तरफ फेंका गया. ओके, विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, जो बॉल को हम लोगों ने थ्रो किया वर्टिकली अपवर्ड उसकी स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड. व्हेन एंड वेयर विल द बॉल्स मीट. अब ये दोनों बॉल जो है किस पॉइंट पे मीट करेगी. लेट अस सी द सॉल्यूशन हियर. सपोज द फर्स्ट बॉल इज ड्रॉपिंग फ्रॉम the point A and the second is thrown up from point B. ठीक है, let us suppose that जो पहली बॉल है उसे हम लोगों ने ड्रॉप किया पॉइंट A से और जो दूसरी बॉल है उसे हम लोगों ने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया फ्रॉम पॉइंट B. Suppose the ball meets at C. Let us suppose the balls are meeting at point C. Then what happens here? We will calculate the displacement done by ball in the both cases. Okay, the ball is starting from rest from point A. तो अभी हम लोगों ने देखा कि जब हम लोग किसी बॉडी को रेस्ट पोजीशन पे या फिर हम लोग किसी पर्टिकुलर हाइट से उसे ड्रॉप करते हैं तो उस केस में इनिशियल वेलोसिटी बिकम्स 0. Initial velocity becomes 0. So using second equation of motion, AC will be equal to 1 by 2 gt. कैसे? Because second equation says that s is equal to ut plus half at square. Second equation मेरा ये है s is equal to ut plus 1 by 2 at square या gt square we can say here in the case of freely falling body. So here u is 0. So this complete will be 0. ये पूरा जो है मेरा 0 हो जाएगा. So AC is equal to 1 by 2 GT square. Let it be equation 1. इसे हम लोगों ने equation 1 suppose किया. At B, the ball is thrown up with the speed of 20 meters per second. ठीक है, यहाँ पे B पॉइंट पे जो बॉल है वो कितने स्पीड से ऊपर फेंकी गई है 20 मीटर पर सेकेंड. द डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t. ठीक है, अब हम लोग BC डिस्प्लेसमेंट को भी देख लेंगे यहाँ पे बिकॉज स्पीड हियर वी नो दैट स्पीड इज 20 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम इज t. ओके, और अभी हम लोगों ने देखा जब हम लोग किसी बॉडी को एंटी ग्रेविटी थ्रो करते हैं देन g बिकम नेगेटिव. वहां पे g हम लोगों को नेगेटिव लेना है. ओके, सो BC इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड इंटू t. ut इसे हम लोग लिख सकते हैं ut. ओके, प्लस की जगह पे हम लोगों ने यहाँ पे माइनस किया है बिकॉज हियर वी हैव टू टेक माइनस जी बिकॉज बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड. ठीक है, उसे हम लोग ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं. दैट्स व्हाई वी हैव टेकन हियर माइनस. BC इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड t माइनस हाफ GT स्क्वायर. लेट इट बी इक्वेशन 2. यहाँ पे ये इक्वेशन 2 हो गया. नाउ टू फाइंड आउट द
point where, or we can say to find out the time, we will add both the equations. दोनों equation को हम लोग add कर लेंगे. Okay. AC plus BC. So on adding equation 1 and 2, here we get plus 1 by 2 GT square and here we get minus 1 by 2 GT square. यहाँ पे हम लोगों को क्या मिला है? minus 1 by 2 GT square. तो इस केस में क्या होगा? Plus and minus will be cancelled out. So we get time 20 meter per second into time. ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलेगा? And AC plus BC already given in the question that the height is 20 meter. ठीक है, तो AC plus BC is equal to 20 meter और 20 is equal to 20 t. So we will get the time 1 second. Okay, thus the ball will meet after 1 second when they start moving. जब बॉल स्टार्ट करेगी मूव करना तो 1 सेकेंड के बाद जो है वो आपस में मीट करेगी. अब वो कितने हाइट पे मीट करेगी? बिकॉज द क्वेश्चन इज हियर दैट व्हेन एंड वेयर द बॉल विल मीट. ठीक है, व्हेन मीन्स time we have calculated that after 1 second the ball will meet, but where they will meet, we will have to find out the height of BC because C is the point where balls are meeting. ठीक है, ग्राउंड से जो पॉइंट C है उसकी हाइट अगर हम लोग निकाल ले तो we will find out that where the ball will meet. So BC is equal to 20 into 1 second because time is here from equation 2. यहाँ पे equation 2 है. BC is equal to 20 into T. T is 1 second minus 1 by 2 and we know the value of G, that is 9.8 into 1 second square. So on calculating this we get that the balls will meet at height 15.1 meter above the ground. Mass. The mass of a body is the quantity of matter contained in it. Okay, the material content inside a object or a body is called its mass. ठीक है, किसी बॉडी में जितना मटेरियल कंटेंट है that is its mass. It is a scalar quantity and its SI unit is kilogram. ठीक है, यहाँ पे हम लोग अगर let us suppose one box here. ठीक है, यहाँ पे बॉक्स में बहुत सारे इसमें पार्टिकल्स होंगे छोटे छोटे या फिर मैटर होंगे या मटेरियल्स होंगे. तो जितना मटेरियल यहाँ पे कंटेंट है दैट इज इट्स मास. ठीक है, जितना मटेरियल इस ऑब्जेक्ट में कंटेंट है वो उसकी मास हो गई. ओके, द मास ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज. द मास ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज. यहाँ पे कहीं भी हम लोग चले जाएं, द मास ऑफ द बॉडी नेवर चेंज एंड ऑल्सो इट नेवर बिकम्स जीरो as it is a scalar quantity. So it does not change and also it never becomes zero. Mass. What is mass? The mass of the body is the quantity of matter contained in it. Also we can define this, the material contained inside a object, inside a body is called its mass. It is a scalar quantity. Its SI unit is kilogram. Next is weight. The force with which it is attracted, means the body is attracted towards the center of the earth, is called weight. Okay, the force यानी ये जो ऑब्जेक्ट हम लोगों ने यहाँ पे कंसीडर किया ये अर्थ के सरफेस पे, ठीक है, जिस फोर्स से ये अट्रैक्ट होगी, ओके, जिस फोर्स से ये अट्रैक्ट होगी, द फोर्स विथ विच इट इज means the body is attracted towards the center of earth is called its weight. Okay, its SI unit is Newton as it is force, so its SI unit is Newton. It is a vector quantity. Weight is a vector quantity. Mass is scalar quantity. Here we can differentiate between mass and weight. That mass is the material contained inside the body is called mass. The force with which it is attracted toward the center of the earth, it is called
its weight. Mass is a scalar quantity, weight is a vector quantity. SI unit of mass is kilogram, SI unit of weight is Newton. These are some differences between mass and weight. So the weight of the body changes from place to place. Something we will more know about the weight, that it changes from place to place. It can be zero in the case of weightlessness, means when the body is falling freely, then in that case its weight will become zero. उस केस में mass zero नहीं होगा, उस केस में weight zero होगा. Okay. Also when the body is taken to the center of the earth, ठीक है, जब बॉडी जो है अर्थ के सेंटर पे बिल्कुल चली जाए, देन इट्स वेट विल बिकम जीरो. ठीक है, उस केस में भी वेट जो होगा वो जीरो होगा. वेट की फॉर्मूला है यहाँ पे, वेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज m इनटू g. एज इट इज फोर्स, ये एक तरह का फोर्स है, एंड फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो यहाँ पे हम लोगों ने एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से रिप्लेस किया है, बिकॉज इन द केस ऑफ वेट, ठीक है, जो बॉडी जो है एक्सर्ट कर रही है फोर्स किसकी तरफ, ग्रेविटी की तरफ. ठीक है, इट इज ड्यू टू ग्रेविटी, इसलिए हम लोगों ने इसे ए को रिप्लेस कर दिया है जी से. Now let us calculate the weight of the body of mass 1 kg. अगर किसी बॉडी की मास 1 kg है, then its weight will be 9.8 न्यूटन. ठीक है, उसकी वेट कितनी हो जाएगी, 9.8 न्यूटन, बिकॉज मास इज 1 kg. 1 into 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर हम लोगों ने लिख दिया. वेट इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 1. ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोगों को क्या मिला, वेट इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन. नाउ वी विल कैलकुलेट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून. ठीक है, वेट डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी. ठीक है, ये चेंज करती है हर जगह, इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. सो we will calculate weight of an object on the surface of moon. The weight of an object on the moon will be about 1/6 of what it is on earth. Here exactly we can see with the cartoon that if the weight of a person is 100 Newton on earth, then on moon it will become 16.6 Newton. ठीक है, उस बॉडी की जो वेट है वो 1/6 हो जाएगी. नाउ लेट अस प्रूव हाउ इट हैपेंस. ठीक है, अब हम लोग इसे प्रूव करेंगे मैथमेटिकल डेरिवेशन से. सपोज वी हैव एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल m. ठीक है, लेट इट्स वेट ऑन मून विल बी w. सफिक्स में हम लोगों ने m लिखा है, wm. मून पे उसकी वेट जो हो गई wm. Again we suppose the mass of moon capital M, mass of moon capital M हम लोगों ने suppose किया, and its radius capital R. Now according to universal law of gravitation, weight of moon will be Wm is equal to G into capital M, that is mass of the moon, and small m, that is the mass of the object, divided by R square. Let it be equation 1. Now let us suppose the same object on earth, its weight will be We. Now we know that mass of the earth is 100 times of that of moon. ठीक है, हम लोग ये जानते हैं कि mass of जो earth है that is 100 times that of moon. Its radius is 4 times that of moon. ठीक है, जो earth की radius है वो moon की 4 times है. So according to it, यूजिंग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वेट ऑफ अर्थ, उसी ऑब्जेक्ट की जो वेट अर्थ पे हो जाएगी, दैट इज W इज इक्वल टू G इंटू 100m. ठीक है, m को हम लोगों ने रिप्लेस यहाँ पे किया है 100m से, बिकॉज मास ऑफ द अर्थ इज 100 टाइम्स दैट ऑफ मून. ओके, ऑब्जेक्ट जो है दैट इज m, एंड ऑल्सो रेडियस इज 4 टाइम्स, सो 4r वी विल राइट हियर. यहाँ पे हम लोगों ने रेडियस को 4 टाइम्स लिखा है, सो रेडियस यहाँ पे 4r हो जाएगा, एंड इट्स होल स्क्वायर. ओके, नाउ
we will also solve this square. W is equal to G into 100 m into small m divided by 16 r square. Let it be equation 2. इसे हम लोगों ने equation 2 सपोज कर लिया है. Now dividing both the equations. ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को हम लोगों ने डिवाइड किया. वी विल कैंसल आउट दीज टर्म्स. ठीक है, ये सारे टर्म्स जो है वो कैंसिल हो जाएंगे. ऑल्सो हियर आर. ठीक है, ऑन डिवाइडिंग दिस अप्रोक्सीमेटली वी विल गेट 1/6. ठीक है, WM यानी वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून एंड WE वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ. ठीक है, विल बी इक्वल टू 1/6. नाउ वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई दिस साइड. ये हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं इसे. वेट ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 ऑन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ. Pressure. The force acting perpendicularly on a unit area of the object is called pressure, or we can define force per unit area is known as pressure. Okay, also we can define it in the terms of thrust, that thrust per unit area is called pressure. Here we can see in the diagram. यहाँ पे हम लोग diagram से इस pressure को समझेंगे. Don't take pressure, it is just a pressure. Okay. Force पर यूनिट एरिया. यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ये कार्डबोर्ड है, इस पे जो यूनिट एरिया में जो फोर्स लग रहा है, किसी यूनिट एरिया में जो फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज ओनली द प्रेशर अप्लाइड ऑन दिस कार्डबोर्ड. ठीक है, किसी यूनिट एरिया में जो हम लोग इस पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज ओनली द यूनिट एरिया में जो हम लोगों ने फोर्स अप्लाई किया है, दैट इज ओनली द प्रेशर exerted on this cardboard. The SI unit of pressure is Pascal, or we can write Newton per meter square. 1 Pascal is equal to 1 Newton per meter square. Pressure is equal to force by area. It is the mathematical derivation, means mathematical expression for pressure. We can also write it as P is equal to F by A. Okay. Thrust. The force acting on a body perpendicular to its surface. ठीक है, the perpendicular force acting on a body is called thrust. ठीक है, the perpendicular force acting on a body is called thrust. Thrust and pressure are almost the means same. ठीक है, बट यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज और क्या ऐड किया है यहाँ पे, कि thrust per unit area is called pressure, thrust per unit area is called pressure, but the force acting perpendicularly on the body, ठीक है, the force acting perpendicularly on the body or any surface is known as thrust. Its SI unit is Newton. Its SI unit is Newton. And we can write thrust is equal to pressure into area. ठीक है, thrust is the force. thrust मतलब यहाँ पे होता है force. ठीक है, thrust का मतलब यहाँ पे force which is acting perpendicularly on the surface. ठीक है, force which is acting perpendicularly on the surface is called thrust. We can write thrust is equal to pressure into area, and its SI unit is Newton. Its SI unit is Newton. Our next topic is buoyancy. It is a tendency, it is the capacity of an object to float in a liquid. ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट की वो टेंडेंसी, कैपेसिटी, जिसकी वजह से वो किसी लिक्विड में फ्लोट करे, उसे हम लोग बोलते हैं buoyancy. Here टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी. ये जो ऑब्जेक्ट है इस पे दो तरह की फोर्स जो है वो एक्ट करी है. फर्स्ट इज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड सेकेंड इज द बायंड फोर्स. सेकेंड इज द बायंड फोर्स. लेट अस सी व्हाट इज बायंड फोर्स. द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन अ लिक्विड. ठीक है, किसी लिक्विड में किसी ऑब्जेक्ट को जब हम लोगों ने इमर्ज किया है, इधर पार्शियली और कंप्लीटली,
ठीक है, या तो हम लोग पार्शियली उसे इमर्ज करें लिक्विड में या फिर कंप्लीटली उसे इमर्ज करें, तो जो अपवर्ड फोर्स उस पे एक्ट कर रही है दैट इज कॉल्ड बाइंड फोर्स. ठीक है, द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन अ लिक्विड इज कॉल्ड बाइंड फोर्स. इट इज ऑल्सो कॉल्ड अपथ्रस्ट. लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. व्हेन वी स्विम इन अ स्विमिंग पूल, ठीक है, जब हम लोग स्विमिंग पूल में स्विमिंग करते हैं उस वक्त क्या होता है, ऐसा लगता है जैसे समथिंग इज पुशिंग अस अपवर्ड. ठीक है, ऐसा लगता है कि कोई कोई फोर्स है जो हमें ऊपर की तरफ पुश कर रहा है, एंड दैट फोर्स वी कैन एक्सपीरियंस, दैट इज द फोर्स व्हिच इज नोन एज बायंड फोर्स. लेट अस सी व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग बायंड फोर्स. Okay, factors affecting buoyant force are: number one, volume of the object immersed in a liquid. जिस ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने लिक्विड में इमर्ज किया है उस ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम क्या है, दैट अफेक्ट्स द buoyant force. नंबर टू इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड. जिस लिक्विड में हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को इमर्ज किया है उस लिक्विड की डेंसिटी क्या है, दैट अफेक्ट्स द बायंड फोर्स. और इन दोनों चीजों पे जो है वो डिपेंड करती है हमारी फ्लोटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने इसे डिस्कस करना है कि फ्लोटेशन जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग फ्लोट या सिंक करते हुए किस कंडीशन में देख सकते हैं, ये हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे. उसके लिए एक अलग से वीडियो हम लोगों ने प्रिपेयर किया है. आर्किमिडीज प्रिंसिपल. It states that when an object is wholly or partially immersed in a liquid, it experiences a buoyant force which is equal to the weight of the liquid displaced by the object. ठीक है, it is very easy principle given by Archimedes कि जब हम किसी बॉडी को completely या partially, ठीक है, यहाँ पे हम लोग पिक्चर में इसको समझेंगे अच्छे से. एन ऑब्जेक्ट इज लोअर्ड इनटू द कंटेनर ऑफ वाटर. ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने कंटेनर में ऐसे ऐसे इसको अलाइन किया है ऊपर में. ठीक है, इट डजंट टच द लिक्विड. ठीक है, उस केस में जो है इस कंटेनर को हम लोगों ने रखा है ताकि जितनी भी लिक्विड यहाँ पे हो ये इसमें आकर के सेटल्ड हो जाए. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट में को जब हम लोगों ने इमर्ज नहीं किया है देन देयर इज नो लिक्विड इन द कंटेनर. पिक्चर ए में हम लोगों ने देखा, इफ वी इमर्ज इट पार्शियली, ठीक है, आधा इसको हम लोगों ने हाफ इमर्ज किया, देन लिक्विड, ठीक है, यहाँ पे जो लिक्विड कलेक्ट हुआ ये थोड़ा कम है. एंड व्हेन वी इमर्ज इट कंप्लीटली देन द लेवल ऑफ वाटर इंक्रीजेस. ठीक है, यहाँ पे जो है वाटर इंक्रीज कर रहा है. It means that according to Archimedes, when an object is wholly or partially immersed in a liquid, किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग completely या partially अगर लिक्विड में immerse करें तो उतनी ही लिक्विड डिस्प्लेस होगी जितना वेट जो है हम लोगों ने लिक्विड में इमर्ज किया है. ठीक है, यहाँ पे कम वेट को हम लोगों ने इमर्ज किया है, हियर इट इज इमर्ज पार्शियली, तो यहाँ पे लिक्विड जो है वो कम डिस्प्लेस होकर के बाहर आया. और यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीटली इसे इमर्ज कर दिया तो यहाँ पे लिक्विड जो है वो ज्यादा वापस यहाँ पे बाहर आ गया. ओके, सो वी कैन से दैट buoyant force acting on an object is equal to the weight of the displaced liquid. ठीक है, जो buoyant force किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट हो रही है when it is immersed in a liquid, it is equal to the weight of the displaced liquid. Thus, the magnitude of buoyant force acting on an object immersed in a liquid is equal to the weight of the liquid displaced by the immersed object. ठीक है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि जो बायंड फोर्स की मैग्नीट्यूड है इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड. ठीक है, बायंड फोर्स की जो मैग्नीट्यूड होगी दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड. डेंसिटी. द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज डेंसिटी. ठीक है, यहाँ पे हम लोग बहुत अच्छे से डेंसिटी को समझेंगे. मास पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब है लेट इट बी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और वी कैन से
1 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे हम लोगों ने 3 बॉक्सेस लिए हैं जिसमें गैस की मॉलिक्यूल्स को दिखाया है, लिक्विड और सॉलिड की मॉलिक्यूल्स को हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। व्हाट इज डेंसिटी? मास पर यूनिट वॉल्यूम। लेट इट बी वन यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये जो मेरा बॉक्स है या फिर जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि एक जो हमारा यहाँ पे क्यूब है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का है। ठीक है, इस 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो हमारा जितना मास होगा इस सॉलिड बॉडी का, ठीक है, जितना मॉलिक्यूल्स, जितने पार्टिकल्स इसमें आ जाएंगे, जितना मटेरियल कंटेन करेगा, मास, व्हाट इज मास? द मटेरियल कंटेन्ड इन द बॉडी। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में जितना मटेरियल कंटेन करेगा, दैट इज द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, जैसे यहाँ पे ज्यादा स्माइली बॉल जो है सॉलिड में हम लोगों ने देखा कि ज्यादा स्माइली बॉल जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब में आ जा रहा है, मीन्स इट इज मोर डेंस मटेरियल। यहाँ लिक्विड के केस में हम लोगों ने देखा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में सॉलिड के कंपैरिजन में कम आ रहे हैं। ठीक है, स्माइली बॉल्स, तो इसकी डेंसिटी जो है वो कम हो गई। और गैस के केस में देखा कि उससे भी कम, मीन्स लिक्विड के कंपैरिजन में भी यहाँ बहुत कम आ रहे हैं हमारे बॉल्स, मीन्स ईच बॉल रिप्रेजेंट द मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ पे बॉल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, तो यहाँ पे कम मॉलिक्यूल्स यानी लेस डेंस मटेरियल, यहाँ की डेंसिटी बहुत कम होगी। यहाँ पे जो है वो ज्यादा मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब में। यहाँ पे क्या है? पर यूनिट वॉल्यूम, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन हियर 1 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे 1 लेने का मतलब इट इज यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज known as density. Its SI unit is kg per meter cube. ठीक है, डेंसिटी को हम लोग मैथमेटिकली इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। नेक्स्ट टर्म इज रिलेटिव डेंसिटी। The relative density of a substance is the ratio of its density to that of water. ठीक है, वाटर के कंपैरिजन में, ठीक है, जो डेंसिटी हम लोग किसी सब्सटेंस का निकालते हैं, दैट इज द रिलेटिव डेंसिटी। सो द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर टू फाइंड आउट द रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, अगर हम लोगों ने मरकरी का रिलेटिव डेंसिटी निकालना है, देन वी विल फाइंड आउट एज रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी। ठीक है, सब्सटेंस की जगह पे यहाँ पे हम लोग मरकरी की डेंसिटी को रखेंगे, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। If you have any doubts, any confusion, any problem related to the video, or you want any other topic to be discussed on my channel, please comment in the comment section, or you can write on my Gmail account, which is given in the description box. Thank you very much for watching.